सर को मैं विनती करता हूँ कि सबको एनलाइटन करें और सबको इंस्पायर करें। तो ओवर टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस आर जोशी सर, प्रिंसिपल जीसी भरूच। Sir, thank you for introduction. But anyway, so I was informed that at GC Bharuch, you both have got the initiative advantage of initiative of SSIP, and now you are running one startup. So I am very happy to meet you online. In future, whenever the things are good enough, we will meet personally. Would like to definitely interact with you in person. My intention of joining here you online is to motivate my students of GC Bharuch who are currently studying. I want to tell them that meet student like you both. If you can start your own business in the form of startup, any student can, right? The government of Gujarat and GC Bharuch is eager to help you out. But one thing I would like to mention here very clearly, that you need to have potential, you need to have some point to prove, you need to have eagerness to work hard, you need to have some vision, you need to have some direction. There are thousands of students out there in the real world to give you good quality of competition. Be sure that you will face competition, but then you should build up confidence by your attitude and hard work. You can visit the students like Rehnuma and other guy, I don't know the name. You can meet personally. We will arrange such kind of webinars for other startup runner also, so that you will have idea that what startup is all about, what kind of challenges are there. It is said in this parlance that 90% startup fails, right? It is said so. So you should try to understand that what are the reasons behind failures, as well as you should also see that how you can keep your motivation very high and run your startup. Technology is the field which is to be applied somewhere for the benefit and comfort of human mankind. There are lots of ways, lot many ways are there in which you can apply your technology. Another point I would like to draw into your attention, that if you are, let's say, mechanical engineering student, don't think that in real world, if you are serving for some company or government, or you are running your own business, don't think that the knowledge of mechanical engineering only will be enough. Now the days are gone. You need to have knowledge of management, you need to have management of commerce, you need to have management of management of team workers, you need to have big team. So it has been talked many times that teamwork is very, very important. You go and search out any business, any company, any unit, it will be successful only if there is a good team. So challenges are too many, but then opportunity is also very high. So my appeal to all of you is that don't stick to your syllabus only. My point is not that don't look at the syllabus. I am not saying so.
but then you need to see many other things. સર વેબિનાર છે 2 મિનિટમાં કરું. હા. So I wish best of luck to all faculty members who are working to support SSIP for all students, and to all students also, that GC Bharuch can do better to support you and you get success in your real world in the form of your own business, startup, or whatever you do, right? Best of luck. Best wishes. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for inspirational word. Sir has said that the competition and the teamwork is a main, and the versatility of the team is most important for a startup. So as time is running out, I start to introduce our both hero of today's event. जो मेरे पीछे फोटो लगा है वो सब कुछ कह जाता है ना? पीछे फोटो में चीफ मिनिस्टर सर है, एजुकेशन मिनिस्टर सर है, और बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर है, रहनुमा है, अजय है ना? और वो दोनों को अवार्ड मिल रहा है 2018 स्टार्टअप ऑफ द गुजरात स्टेट, होल गुजरात स्टेट 2019 की वाइब्रेंट गुजरात इवेंट में ये अवार्ड मिला था, है ना? और 75,000 रुपीज कैश मिला था, और पूरे देश की मीडिया ने कवर किया था, है ना? रहनुमा और अजय को पूरे देश की मीडिया ने कवर किया था, और यही सबसे बड़ी दोनों की पहचान है। और ये स्टार्टअप का क्या इम्पोर्टेंट था वो भी मैं बताना चाहूँगा कि भरूच जैसे सिटी में जीसी भरूच जैसी कॉलेज, यानी कि तब हमारी कॉलेज भी एक अंडरडॉग की तरह थी। अब तो कॉलेज बहुत बड़ी है, कॉलेज बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा ही था कि जीसी भरूच जैसी कॉलेज क्या कर सकती है। और ये कॉलेज में से सबसे पहला स्टार्टअप आया गुजरात का, एसएसआईपी पॉलिसी के अंडर में सबसे पहला स्टार्टअप, एसएसआईपी पॉलिसी के अंडर में सबसे पहली पैटर्न, और सबसे पहले एसएसआईपी से पैसा जो हमने दिया वो भी ये दोनों को ही हमने दिया, है ना? तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरे गुजरात में पड़ा, इतना बड़ा कि चिंगारी ये लोगों ने लगाई, है ना? हमारी पूरी टीम ने लगाई, और पूरे गुजरात में आग लग गई। और वो आग इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई कि आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में हम स्टार्टअप में गुजरात नंबर 1 पे है। तो ये दोनों ने इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया। अब और आगे बात बढ़ाऊँ तो ये दोनों, देखो टीम की बात सर ने की, ये दोनों की जेंडर अलग है, कास्ट अलग है ना? दोनों की कास्ट अलग है, दोनों की ब्रांच अलग है, लेकिन फिर भी आज भी एक ही कैमरे में दोनों हैं, देखिए, है ना? तो टीम कैसी होनी चाहिए, और टीम के लिए सबसे पहली चीज ये है कि विश्वास। तो दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास, वही दोनों को आगे लेके गया, है ना? और ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों से ही गुजारिश करूंगा कि अपनी जर्नी आइडिया से लेके स्टार्टअप तक पहुंचे आप लोग, है ना? कैसे सस्टेन रहे। पिछले साल में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप भी कील्ड हो गए क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से। तो आप कैसे सस्टेन रहे। आज की तारीख में भी मैंने अजय से सुबह ही फोन किया था, तो बताया कि 80,000 90,000 रुपीज पर मंथ अभी भी टर्नओवर हो रहा है ना? ये ऐसी कंडीशन में भी। तो ये सारा आप लोगों ने कैसे किया, आपकी जर्नी कैसे रही, वो सारा आप बताने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जो विशाल सर ने आपको हमारे बारे में बताया, उसके बाद वो काफी कुछ हम लोगों के बारे में वो बता के गए हैं। तो इंट्रोडक्शन तो वैसे उन्होंने हमारा दे ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर रही हमारी जर्नी की बात, तो जो हम लोगों ने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो वो फिजिक्स लैब से स्टार्ट किया है। जब हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तो फिजिक्स प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाना था, तो हम लोगों ने फिजिक्स प्रोजेक्ट बनाया वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के बारे में। अब वो वायरलेस पावर ट्रांसमिशन इतना बड़ा हुआ करता था जब हम लोगों ने उसको स्टार्टिंग में बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि क्या प्रॉब्लम, फिर उसमें हम लोग देखते रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। वो जब स्टार्ट किया था उसमें वैसा था कि वो वायरलेस, अगर हम एक 12 वोल्टेज का फैन होता है वो, और कुछ एलईडीज लगा के रखी हुई थी उस प्रोजेक्ट में, तो वो चीजें हम लोग बिना किसी वायर के कनेक्शन के उसको ऑपरेट कर सकते थे। वो हमारा फर्स्ट ईयर का फिजिक्स प्रोजेक्ट था।
फिर हम लोगों ने वहीं पे से स्टार्ट किया फिजिक्स लैब में। हमको वहाँ पे इनकरेज डॉक्टर निराली भुंडेलिया जो फिजिक्स हेड डिपार्टमेंट के एचओडी है, उन्होंने हमको इंस्पायर किया इसके अंदर कुछ इनोवेटिव करने के लिए। तब हम लोगों ने स्टार्ट किया और तब स्टार्टिंग से लेके 2017 तक में हम लोगों ने उसको इतना कॉम्पैक्ट कर दिया कि वो पूरा प्रोजेक्ट इसमें इस चीज में आ गया। और दोषी सर की हेल्प से फिर हम लोगों ने उसको एसएसआईपी में रजिस्टर्ड करवाया। एसएसआईपी में रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसमें पेटेंट हुई। पेटेंट होने के बाद फिर जब एसएसआईपी ये 2018 का जब अवार्ड रखा गया तो उसमें हम लोग सिलेक्टेड हुए। तो देखने जाए तो जो भी हमारी जर्नी है उसमें जो श्रेय है वो ज्यादातर जो दोषी सर है वो और निराली मैम है उन दोनों को ही मिलना चाहिए। और हम लोग हमेशा ही कोई भी इंटरव्यू हो जो आज तक हम लोगों ने दिया है या कहीं पे कुछ भी हो, हम लोग इन दोनों को ही वैसा मानते हैं कि हाँ आज जो भी है हम इन दोनों की वजह से ही हैं, जहाँ पे भी पहुंचे हैं इन लोगों की वजह से ही है। और इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, अगर आप कहीं पे भी अभी जैसे कि कोई भी चीज हो, मोबाइल हो, कैमरा हो, कोई भी चीज हो, हम कहीं पे लेकर जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बैटरी का प्रॉब्लम रहता है कि बैटरी ज्यादा से ज्यादा, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब 2200-2300 mAh के अराउंड बैटरी का वो था कि उतनी मोबाइलों में उतनी बैटरी आ रही थी। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर कोई चीज बना रहे, पावर बैंक एग्जिस्ट थे, ऐसा नहीं था कि पावर बैंक नहीं बने थे, लेकिन कहीं पे अगर जाना रहता है जैसे कि आप कैंप में जाते हो या रूरल एरिया में कहीं पे भी जाते हो तो वहां पे हर टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो ये जरूरी नहीं होता। तो उस पावर बैंक का चार्ज भी उतना ज्यादा रहे वैसा भी नहीं था। तो हम लोगों ने उस प्रॉब्लम का इसमें सॉल्यूशन ये निकाला कि जो ये पावर बैंक है वो सोलर के थ्रू चार्ज होता है। फिर अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ सन तो हर जगह पे ही रहेगा, तो इस चीज को आप सन से चार्ज कर सकते हो। और रहा वो जो वायरलेस वाली बात जो मैंने आपको बताई, तो वायरलेस जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था उसको हम लोगों ने सोचा कि अगर जब ये बना रहे हैं तो क्यों ना इसी में इम्प्लीमेंट करें। तो जो वायर आपको साथ में लेके घूमने की जरूरत पड़ती है तो उसकी जरूरत निकल जाए। और वो सबसे पहले दोषी सर ने ही परचेज किया था हमारे पास से जब हम लोगों ने ये बनाया था। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा दोषी सर ने लिया था। वो अभी दिखा भी I रहा है। feel very privileged for that, है ना, क्योंकि स्टार्टअप से परचेस करना है ना वो बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो आई फील प्रिविलेज फॉर दैट। और अभी तक ये चल भी रहा है, बढ़िया चल रहा है और मुझे बहुत ही यूजफुल है। 4 साल हो गए, करीब करीब 3-4 साल हुए, लेकिन फिर भी अभी चल रहा है। और आप लोगों ने मुझे 1500 रुपये बताए थे, मैंने आपको 2100 दिए थे, है ना, वो भी मुझे याद है। चलिए आप और कोई चैलेंजिंग बताइए कि क्या चैलेंज रही है ना। ये प्रोडक्ट की नीड आपने फाइंड की और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक पे भी किया। वायरलेस था और सोलर था, दोनों उसमें नोवेल्टी थी, आपने पैटर्न भी किया। लेकिन पहला आइडिया आपको कहाँ से आया और फिर वो आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट किया तो कहाँ कहाँ आपको स्ट्रगल हुई? क्योंकि पहले आइडिया से आपने अपना कॉन्सेप्ट प्रूव किया होगा, प्रोटोटाइप बनाया होगा, बाद में प्रोडक्ट की तरफ गए होंगे। तो ये प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट पार्ट से वो आपने कैसे डिजाइन किया, है ना, आपने प्रोटोटाइप कैसे बनाया, कहाँ से फंडिंग लिया, वो सारी बातें भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे रहनुमा जी ने बताया कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है, आपका कैमरा एडजस्ट कीजिए अजय, आपका कैमरा एडजस्ट करो। ओके सर, ओके ओके। जैसे रहनुमा जी ने बताया ये हमने प्रोजेक्ट अपने फिजिक्स लैब से स्टार्ट किया था। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो उसका साइज लगभग जो अपना डेस्क होता है उसने उतना बड़ा उसका साइज था। तो जब हमने स्टार्ट किया वो, तो हमने सोचा कि अभी इसको हमारा वो प्रोजेक्ट वर्क होने लगा, सक्सेस हो गया। लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको अब रियल लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने मार्केट सर्वे किया था। मार्केट के अंदर ज्यादातर अभी जो यूज में हो रहा है, सबसे ज्यादा अभी यूज मोबाइल के अंदर यूज होता है। तो अभी मोबाइल का हमने देखा कि मोबाइल में जो पावर बैंक होता है, तो पावर बैंक अभी नॉर्मली सभी केबल वाले होते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि अभी जो जैसे केबल
को कहीं पे ले जाने में कैसी उसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि अभी अगर केबल अगर भूल जाते तो अपना मोबाइल चार्ज हुए बिना रह जाता है, और अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो वहां पे हमको वो पावर बैंक तो चार्ज नहीं होता, हमारा मोबाइल भी वैसे ही हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम इसको सोलर और वायरलेस को दोनों को इम्प्लीमेंट कर दे तो जो वो केबल वाली प्रॉब्लम आती थी तो वो केबल वाली प्रॉब्लम भी निकल जाएगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है तो उसकी जगह पे हम उसको सोलर से चार्ज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग पे जाए या तो कहीं पे कैंपिंग में जाए, हर जगह पे आप उसको इजीली यूज कर सकते हो सोलर से चार्ज करके। फिर हमने इसके अंदर देखा कि अभी जैसे नॉर्मली हमको मार्केट में हमारा अभी जो स्टार्टअप था वो नया स्टार्टअप था, तो अभी जैसे हमने मार्केट में उसको लॉन्च किया तो लॉन्च करने के लिए हमको स्टार्टिंग फंडिंग चाहिए था। तो स्टार्टिंग फंडिंग हमने 10,000 से सिर्फ उसको स्टार्ट किया था। तो 10,000 से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने उसका करवाया। तो पेटेंट करवाने के बाद हमारा वो प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड बन गया उस प्रोडक्ट का कि हाँ हम ये पेटेंटेड है और उसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते थे। फिर हमने उसका सेलिंग करना चालू किया। फिर जब प्रोटोटाइप उसका बना, प्रोटोटाइप उसका जो है प्रोटोटाइप हमारा लगभग इतना बड़ा था तो उसको हम पोर्टेबल लेके कहीं पे भी जा नहीं सकते थे। फिर उस प्रोटोटाइप के ऊपर हमने टेस्टिंग करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डेवलप किया, जो अभी आप लोगों को स्क्रीन में हमने दिखाया था इस तरह का, और डोसी सर ने भी आपको दिखाया था। तो उस तरह का हमने पूरा प्रोडक्ट डेवलप किया और उसको मार्केट में हमने लॉन्च किया। तो मार्केट में जब लॉन्च किया तो हमने देखा कि वहां पे ऑलरेडी दूसरी जो कंपनियां हैं हमसे कम भाव में दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बेच रही हैं, पावर बैंक बेच रही हैं। तो हमने फिर ये सोचा कि अभी इसके अंदर क्या ऐसा करें जो इससे इसका रेट जो है वो डिक्रीज हो। तो हमने उसके अंदर अपना जो एम्पलीफायर सर्किट वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट करके जो उसका जो नॉर्मल जो बैटरी अभी मार्केट में मिल रहा है जो नॉर्मल पावर बैंक, उसी बैटरी की कैपेसिटी के साथ में हमने उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। तो जो शायद जो रेट में उन लोगों का 2000 में जो हमको मिल रहा था नॉर्मल मार्केट के अंदर, वही हमने 1500 से 1000 के अंदर का वो कर दिया। तो वो और हमको वो ग्रांट भी मिला ये प्रोडक्ट के लिए 75,000 का। ग्रांट जो है वो एसएसआई से मिला था हम लोगों को, इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनाने के लिए एसएसआई का से ग्रांट मिला था। और फिर हमको पिकअप उससे पूछा हमको मिला कि जो हमको अवार्ड मिला, तो जो अवार्ड का अवार्ड मनी थी तो हमने उसको भी ये प्रोडक्ट को डेवलप करने में हमारा और जो था उसमें हमने 3-4 मॉडल लॉन्च कर दिए। ये हमारा फर्स्ट मॉडल था जिसके थ्रू हमने मार्केट में पायलट बीटा रन किया, और फिर उसके बाद हमने दूसरे 3-4 मॉडल रन किए। तो वो सक्सेसफुली ये प्रोडक्ट पूरा लॉन्च हमने कर दिया और वो मार्केट में बिकने भी लगा। तो हमने ये जो प्रोडक्ट है हमारा, तो हमने रेवेन्यू अराउंड 2 to 3 लाख जैसा हमने इसे किया था। लेकिन अभी जैसे कि अभी तो पैंडेमिक में हमारा जो इसके अंदर से जो मटेरियल रहता था, जो मेन इसका जो मटेरियल होता था बैटरी वो आउट ऑफ इंडिया से हांगकांग और सिंगापुर से यहाँ से हमको इंपोर्ट करवाना पड़ता था। लेकिन जैसे ये पैंडेमिक आया तो उसमें वहां से इंपोर्ट हमारा बंद हो गया। तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा डाउन हो गया था। फिर हमने सोचा कि अभी हम स्टार्टअप को तो बंद नहीं कर सकते। फिर हमने ये सोचा कि उसमें कुछ अब फिर से हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना था कि अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें कि जिसके थ्रू हम अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू रख सके। तो उसके बाद हमने ऐसा देखा कि जो नॉर्मली अभी लाइटिंग का गुजरात में बहुत सी जगह पे बहुत से गांव ऐसे जहाँ पे लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जो हर किसी को यूजफुल हो सके, जो वो फार्मर्स से लेके जो छोटे घर वाले या जो स्लम रहते हैं उनको भी यूजफुल हो सके। तो हमने मार्केट में ये देखा कि नॉर्मली वो लोग जो रिचार्जेबल लाइट्स यूज करते हैं, तो रिचार्जेबल लाइट नॉर्मली देखे तो चाइना की मोस्ट ऑफ चाइना की रहती है और उसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं आती, और उसका जो बैकअप टाइम होता है तो बैकअप टाइम भी बहुत ही कम रहता है। तो फिर हमने फिर अपना ये दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये जो रिचार्जेबल ट्यूबलाइट है। तो अभी ये इसके अंदर और अभी जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो अभी जो ये वाली हमारी है तो इसी रेट अगर इसी कैपेसिटी के साथ में अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो यही चीज आपको 1000 से लेकर 1200 तक मिलेगी।
लेकिन हमने ये जो चीज बनाई है कम से कम एक बार फुल चार्ज होने 5 से 6 घंटे तक बैकअप देती है, जो अभी के मार्केट में जो चाइना वाले हैं एक भी लाइट आपको इतना बैकअप नहीं देगी। तो अभी ये वाला जो कंटिन्यू हमारा मंथली रेवेन्यू 80 to 90,000 पर मंथ हमारा इसके अंदर है। तो अभी इसके अंदर हमने क्या किया ऐसा कि जो इसका बैकअप इतना बढ़ गया, हमने इसके अंदर जो पावर बैंक के अंदर इम्प्लीमेंट किया था वही वाला सर्किट हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो अभी जैसे देखे तो नॉर्मली हमने इसमें 3000 mAh की बैटरी डाली है, तो 3000 mAh से हम इसके अंदर से 5 से 6 घंटे तक का बैकअप ले सकते हैं। तो ये भी अभी कंटिन्यू हुआ था, तो अभी ये कंटिन्यू हुआ, तो इसके अंदर भी लॉकडाउन जो हो गया था, तो अभी लॉकडाउन में भी हमारा हमको जो शॉप का रेंट होता है और जो आने जाने का ट्रैवलिंग का और जो घर का रहता है वो सब चीज हमको करना रहता था उसमें। तो फिर हमने फिर उसके अंदर सोचा कि अभी ये वाला भी प्रोडक्ट अगर लॉकडाउन हो गया है तो लॉकडाउन की वजह से हम इसको सेलिंग नहीं कर पाते थे, तो उसको करने के लिए हमने फिर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपेयरिंग का होता है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी लेना चालू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा है भरूच में ही है, फेमस सिल्वी स्क्वायर करके है जहाँ पे हमारा पहले ऑफिस था। तो वहाँ पे फन सिनेमा का पूरा एक थिएटर है, तो थिएटर का हमने पूरा का कॉन्ट्रैक्ट जो 1 महीने का पूरा जो लॉकडाउन था, तो 1 महीने 2 महीने का जो पूरा लॉकडाउन था, तो पूरे लॉकडाउन के अंदर भी हमको ऐसा नहीं था कि हमारा इनकम नहीं जनरेट हुआ, हमने उसके थ्रू अपना इनकम कंटिन्यू ही रखा, भले ना पूरा लॉकडाउन हो, लेकिन हमने वहां से पूरा उनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और वर्क भी जाके वहीं पे करना था, तो हमने वहां पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया और वहां से हमने पूरा इनकम जनरेट रखा और अपना ये जो स्टार्टअप है वो कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि सर ने आपको बताया कि अभी के टाइम में मार्केट इतना गिर चुका है कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं वो अभी तक बंद हो गए, तो हमको दिक्कत नहीं आई, हम लोगों को प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ी जब से स्टार्टिंग किया है तब से लेकर अभी तक। देखने जाए तो अभी भी हम लोग स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा जैसा आपको बताया सर ने कि ऑटो ड्राइवर हैं, पहले वो ऑटो चलाते थे, उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में आईटी इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, तो आईटी इंजीनियरिंग जो किया करवाया है वो उन्होंने ऑटो चला के ही करवाया है, तो तब से घर में तो प्रॉब्लम में रहती ही है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब हम लोगों ने इसी में ज्वाइन कर लिया है, पापा को भी ऑटो छुड़वा के, तो जो भी ये प्रोडक्ट ये जो अभी इन्होंने बताया आपको कि ये जो प्रोडक्ट है इसको इसका मार्केटिंग मेरे पापा ही करते हैं ज्यादा, तो हम लोग कैसा है कि अभी घर में ही पूरी एक ऐसी टीम बनकर काम कर रहे हैं जिसमें इनके भाई बहनों, मेरी सिस्टर है और मेरे पापा हैं, तो हम लोग 6-7 लोग मिलकर इसी चीज का मार्केटिंग अभी स्टार्ट रखा है। कुछ लोग यहाँ पे बनाने के लिए हैं और पापा का जो है वो मंथली अराउंड 40,000 जैसी उनकी सैलरी निकल जाती है इसी प्रोडक्ट में से। तो अगर हम लोगों ने क्या किया कि जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले घर वालों से ही स्टार्ट, कि अगर हम लोग ये चीज करते हैं, अभी हम लोग किसी और को मार्केटिंग के लिए रखते तो वहां पे हमको किसी और को देना पड़ता, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर पापा है और उन्होंने उनका अच्छा भी है मार्केटिंग में, तो उनको इसी में लगा देते हैं और वो अच्छा कर भी लेते हैं, 40,000 रुपीज पर मंथ वो उनकी सैलरी निकल जाती है। फिर जो हमारे भाई बहन यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को हम 5,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं अभी। तो वो क्या है कि अभी वो जो घर में से जो है तो उन लोगों को ही पहले हम लोगों ने एज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में सोचा कि घर में ही पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिए तले अंधेरा हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने पहला जो उजाला है वो अपने घर से ही करने की कोशिश की कि हाँ हम लोग अपने घर से ही स्टार्ट करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी के टाइम में देखें तो जो हमने पूरे लॉकडाउन में किया, तो लॉकडाउन में बड़े से बड़े बिजनेस हैं उनका पूरा जो है वो डाउन हो गया था मार्केट, लेकिन हमारा जो मार्केट है हमने कंटिन्यू रखा, तो पूरे लॉकडाउन के अंदर भी हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू रखा, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसका सेलिंग भी हमने कंटिन्यू रखा और अभी हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर गुजरात के साथ में दिल्ली और मुंबई तक भी अभी ये पहुंच गया है।
जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया था तो ये प्रोडक्ट टोटली मार्केट के लिए नया था, क्योंकि अभी तक लोगों ने सिर्फ चाइना देखा है, चाइना की लाइटें देखी हैं, जो वो टॉर्च रहती हैं वो देखी हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए टोटली नया था। तो जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया तो हम लोग खुद ही इसको विलेजेस में, जो रूरल विलेजेस हैं, वहां पर हम लोग इसको डोर टू डोर सेल करने के लिए जाते थे। क्योंकि अभी जब नया प्रोडक्ट है तो वो तो ऐसा रहेगा नहीं कि हम किसी दुकान पे जाते और उसको जो रिटेलर है या होलसेलर है वो लेने के लिए रेडी हो जाता। तो हमको पहले कस्टमर का ट्रस्ट चाहिए था। तो वो ट्रस्ट बिठाने के लिए हम लोग ये मैं और दूसरे हमारी जो सिस्टर और ब्रदर है, हम लोग 4-5 लोग मिलकर टीम बनाकर विलेजेस में जाते थे और वहां पर विलेजेस में इसको डोर टू डोर सेल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि डोर टू डोर सेल करने में भी उन लोगों को जाकर बताया और उन लोगों ने हमसे ये चीज परचेस कर ही ली, वैसा नहीं रहा। वहां पे भी हम लोगों को बहुत सी जगह पे रिजेक्शन मिला, फिर भी हमने कंटिन्यू रखा, क्योंकि हमको हमारा स्टार्टअप जो था वो रनिंग रखना था। और रनिंग रखने के लिए हमको सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज वो था कि अभी लोगों के अंदर ट्रस्ट कैसे बिठाएं। तो ट्रस्ट करने के लिए हमने बहुत सारे स्ट्रेटजी जैसे यूज की। जैसे कि अभी वो लोग, अगर हम अभी कैसा करते हैं कि जैसे 10 पीस दे के आते हैं, तो उसके ऊपर अगर वो ऐसा कहते हैं कि हमको वारंटी गारंटी कैसे, अगर जैसे कि अभी हम जाते हैं यहाँ पे आउट ऑफ सिटी जाते हैं, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा और उधर साइड पे जाते हैं, तो वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि अभी हम कैसे आपके ऊपर कैसे यकीन करें कि हम आप अगर हम आपने अगर गारंटी दी है तो हमको वो दूसरा मिलेगा ही। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जैसे अभी हम उनको दे के आए तो उसके साथ में एक्स्ट्रा पीस भी दे देते हैं कि हाँ, अगर आपको कुछ होता है तो ये एक्स्ट्रा पीस में से आप वारंटी गारंटी रिकवर कर सकते हो। तो इसी तरह के हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी रखी और उसकी वजह से अभी तक हमने ये स्टार्टअप को कंटिन्यू रखा है। और डोर टू डोर जब हम लोग इसको सेल करने जाते थे तो चाइना प्रोडक्ट की वजह से हम पे भी कोई बिलीव नहीं करता था, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू उन लोगों को अब 400 इसके हम लोगों ने प्राइस रखी है। 400 के लिए भी कोई हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि नहीं तुम लोग भाग जाओगे, तुम लोगों का बंद होता है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कैसे करेंगे। बहुत सारी कंपनीज ऐसे आती हैं और मतलब कि उन लोगों का ट्रस्ट बहुत सारे लोगों ने तोड़ा हुआ था, क्योंकि वो कैसे करते थे कि हाँ जैसे भी हो कस्टमर को बस थमा के चले जाओ। उनका सिर्फ एक बार सेलिंग करने का था, लेकिन जब हम लोग जाते थे तो लोग हमारे मुंह पर दरवाजा तक बंद कर देते थे कि नहीं ये भी वैसे ही रहेंगे। फिर ऐसे रिजेक्शन में भी हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है कि हम लोगों कोई भी कीमत पर हम लोग ये स्टार्टअप बंद नहीं कर सकते, भले ना कितना भी इसमें स्ट्रगल करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम लोग इसको बंद किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और फाइनेंस इसके अंदर जब हमको बड़ी अवार्ड मिला था तो उससे हमारा फाइनेंस 75,000 का हमारा उसमें से कवर हो गया था और हमने उसको इसमें इन्वेस्ट किया। वो होने के बाद हमने मार्केट से 3 लाख जैसा फाइनेंस किया था और वो फाइनेंस करने के बाद अभी ये प्रोडक्ट इतना डेवलप हो गया तो जिसके पास से फाइनेंस लिया था वो आज जब हमने लिया था तो उस टाइम पे उस फाइनेंसर ने हमको 2% के ऊपर दिया था, पर मंथ का 2% इंटरेस्ट था। तो हमारा मंथली 6,000 जैसा इंटरेस्ट देना पड़ता था और वो जो इंस्टॉलमेंट होता था वो अलग। तो अभी वो उसको हमारा स्टार्टअप इतना अच्छा लगा कि अभी वो एज ए इन्वेस्टर हमारे साथ ज्वाइन हो गया है और हमारा सितंबर अक्टूबर तक अराउंड 5,000 पीसेस का ऑर्डर भी है उसकी तरफ से। अभी वो जो था जो फाइनेंसर था तो उसका हम लोगों ने जो उससे पैसा लिया था 3 लाख अराउंड, वो हम लोगों ने पहले उसको रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद फिर जब उसने देखा कि हाँ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसका पैसा जैसा लिया था वैसा ही उसको रिटर्न भी किया, तब जाकर उसको भी हम पर ट्रस्ट तभी हुआ कि नहीं, हम अगर वो हम पे इन्वेस्ट करता है तो वो कोई बुरी बात नहीं रहेगी या वो कहीं पे फंसेगा नहीं। तो यही सोच के फिर उसने इसमें इन्वेस्ट किया। फर्स्ट टाइम पे जब उसके पास हम फाइनेंस करने के लिए गए थे तो उस टाइम पे उसको यकीन नहीं था, तो वहां पे जो इनके दादी वो रहते हैं तो उनके बेस पे हमको दिया था, लेकिन आज हमारे बेस पे उनको दे सकता है वो। इतना ट्रस्ट हमने वो ट्रस्ट पे है। और मार्केट में भी ट्रस्ट जो हम लोगों को कायम करना था वो हम लोगों ने किया।
इसी प्रोडक्ट के बेस पे। पावर बैंक का भी ऐसा है कि उसको होल्ड पे रखना पड़ा मटेरियल की वजह से। लेकिन ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये पूरा मेड इन इंडिया है, इसमें से हमको कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पे इंडिया में इसका हर एक चीज हमको, हर एक पार्ट, और मेन करके इसमें ज्यादा है तो जो ये ऊपर का है ये हमारा सिर्फ हमको इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी जगह बन, बाकी अंदर का जो सर्किट है पूरा जो उसका पीसीबी है वो हम खुद ही डिजाइन करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया है हमारा, तो इसकी वजह से हमको अब ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रह सकता है, भले ना कहीं भी कुछ भी बंद हो जाए। अभी लॉकडाउन के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हमारा पूरा इसका कंटिन्यू ही था। ये जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल के चार्जर से चार्ज होता है इजीली, तो अभी आप, और ये पावर बैंक से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको भी लॉन्च करेंगे तो इसके साथ में ये प्रोडक्टों को एड ऑन रख सकते हैं, ताकि अगर कहीं पे जाएं तो हमको बैकअप कंटिन्यू, मोबाइल तो चार्ज रहेगा ही, प्लस हमको जो लाइटिंग है तो लाइटिंग में हमको कंटिन्यू मिलता रहेगा। और ये यहाँ तक अभी जो हम लोग पहुंचे हैं तो SSIP की ग्रांट जो है वो हम लोगों को सर की वजह से ही मिली है। हम लोग जब सबसे बड़ा पुशअप हमारे लिए वही था कि सर ने हमको जो सपोर्ट किया, जो फैकल्टीज थी और जो हमको वहां तक पहुंचा है जो स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड के लिए, तो सबसे बड़ा जो देखे तो सबसे बड़ा जो है वो डोसी सर का है। तो उनके लिए, उसके लिए हम बहुत ही थैंक्सफुल है, उनके आज भी बहुत थैंक्सफुल है, क्योंकि हम जो यहाँ पे तक अभी तक पहुंचे हैं वो पूरा उसमें जो दे तो पूरा क्रेडिट हम डोसी सर को देते हैं। देखने जाए तो जो हमारी पहचान हुई वो अवार्ड मिलने के बाद हुई, और जो अवार्ड के लिए हम लोगों को इंकरेज किया या वहां तक लेकर गए तो वो जो है विशाल दोषी सर ही लेकर गए हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल है उनके कि हाँ, वो नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते, कि आज हम लोगों की उतनी पहचान नहीं हो पाती। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल। मैं नहीं होता तो कोई और होता है ना। आपका काम चलता रहता, दुनिया चलती रहती है ना, कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी है ना, आप दोनों लायक ही थे। और पहले मैंने आपको चलाया, बाद में आपके नाम से मैं भी बहुत चला हूँ, है ना। ये 3 साल जो चला हूँ ना वो आपके नाम से ही चला हूँ, तो आपको भी थैंकफुल है ना फॉर दैट। आप बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिए। अभी हम आपके लिए ये सेशन ओपन करते हैं, है ना। आप क्वेश्चन कीजिए, आपको क्या है, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सर ने शुरुआत में बताया कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप फेल होते हैं। किसी को पूछेंगे कोई 99 बोलेगा, कोई 92 बोलेगा, कोई 95 बोलेगा, कोई 90 बोलेगा, लेकिन स्टार्टअप फेल होते हैं ऐसा ही सब बोलेंगे। लेकिन एक और चीज कोई बोलता नहीं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टार्टअप फेल हो सकता है, स्टार्टअप करने वाला कभी फेल नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप करते करते उसकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड होती है, उसकी टैलेंट इतनी बिल्ड होती है, उसकी स्किल इतनी बिल्ड होती है, उसकी एबिलिटी इतनी बिल्ड होती है कि वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये दोनों आपके सामने इतने सिंपल थे, दोनों आए थे बहुत। ये अजय तो इतना बोलता भी नहीं था, रहनुमा भी बहुत कम ही बोलती थी, है ना, लेकिन दोनों यस सर बोलते थे, और जो बोला था वो करते भी थे, बहुत कम बोलते थे दोनों। तो देखो इतनी कैपेसिटी दोनों की बिल्ड हुई है कि आज वो दोनों को पैसा कमाना या तो वो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी, क्योंकि कैसे इंसानों के साथ बातें करते हैं, कैसे इंसानों के साथ डील करते हैं, मशीन के साथ कैसे डील करते हैं, वो सारी चीजें वो दोनों को पता चल गई है ना। तो स्टार्टअप फेल होता है, स्टार्टअप करने वाला कभी फेल नहीं होता। 3 चीज होती है, एक स्वयं में विश्वास, एक अपने लक्ष्य पे विश्वास, और तीसरा अपने रास्ते पे विश्वास। 3 ही चीज है, अपने पे विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पे विश्वास रखो, और अपने रास्ते पे विश्वास रखो, है ना। ये 3 चीज है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आपका क्वेश्चन रेज कीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चन तो मैंने चैट बॉक्स में देखे भी थे। आप अपना माइक ऑन कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। Hello. Good afternoon, गुड sir. आफ्टरनून। हाँ यार, Sir, I am audible. हाँ यस, यू आर ऑडिबल। यस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टार्टअप के लिए जो लाइक मैं स्टूडेंट 2021 का पास आउट स्टूडेंट हूँ,
तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर तो मुझे करना हो अब तो? ये सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा, है ना? तो ये 5 साल तक आप ले सकते हैं। अभी भी 2021 में पास हो चुके हैं, फिर भी आप 5 साल तक आपके स्टार्टअप को हम फंड कर सकते हैं, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। वेरी गुड आपको। हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल, कम ऑन। तो आप लोग ने जो पावर बैंक का जो बनाया था, आपने जो सोलर सेल का जो आपने सर्किट बनाया था, तो एक एक फैक्ट है कि मतलब आई डोंट नो कितना अभी कितना एक्यूरेट है, पर जो सोलर सेल की जो पावर एफिशिएंसी होती है वो 20 से 25% होती है कहते हैं। तो आपने आपने ये जो अपनी पावर एफिशिएंसी आपने उसको मैनेज कैसे किया? उसके अंदर जैसे जैसे अभी ये सेल है हमारा, 16 सेल है, तो इसके अंदर के जो ये 16 सेल है तो इसकी क्वालिटी हमने ऐसे बिल्ड करवाई जिसका कम से कम जो है 500 to 700 मिली एम्प करंट ये दे सके। तो अगर इस तरह का पैनल होता है तो हम इससे जो अगर तो बैटरी चार्ज करते हैं तो कम से कम वो 3-4 या 5-6 घंटे के अंदर वो मोबाइल को 1 से 2 बार चार्ज कर सके, उतना ये पूरा फुल चार्ज हो सकता है। मोनोक्रिस्टलाइन, ये मोनोक्रिस्टलाइन हमने यूज किया है, तो इसमें जो टाइप का मोनोक्रिस्टलाइन के अंदर जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वही वाला पैनल हमने इसमें यूज किया है। ओके, थैंक यू। और और जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है तो सर्किट के अंदर होता है कि जैसे अभी उसमें जो करंट हो वो उसमें कांस्टेंट करंट चाहिए, तो कांस्टेंट करंट के लिए हमने सर्किट के अंदर मॉडिफिकेशन किया है कि अगर बाय चांस धूप जो हो या जो लाइट है वो कम ज्यादा हो तो वोल्टेज कम हो के वो जो करंट है वो कांस्टेंट ही रखे, तो उसका हमने जो है वो कन्वर्टर डाले थे जो रेगुलर वो एक वे में उसको कन्वर्ट करके एक वे में कांस्टेंट करंट दे सके बैटरी को। थैंक यू, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आपने जैसे लिथियम जो सेल टाइप की बैटरी यूज की, उसके जगह आप मतलब जो क्या बोलते हैं लिथियम पॉलीमर जो बोलते हैं एकदम पतली सी बैटरी आती है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करने का कोई यूज ना करने का कोई रीजन? हाँ, तो हमने इसमें लिथियम पॉलीमर यूज किया था। अभी जैसे कि अभी लिथियम के जो लिथियम आयन सेल होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जो अभी का हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है ये वाला, इसके अंदर हम लिथियम आयन यूज करते हैं, ये वाला सेल यूज करते हैं अभी का वाला प्रोडक्ट। और ये वाला जो प्रोडक्ट था तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा रहता था कि इसमें सेफ्टी ज्यादा चाहिए, सेफ्टी करके अगर कहीं पे ओवर चार्ज होता है, अगर ओवर डिस्चार्ज होता है तो वो अगर लिथियम पॉलीमर जो बैटरी होती है वो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा रहती है और वो साइज में भी छोटी रहती है, इसलिए हमने इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज की थी। और सबसे ज्यादा वो सेफ्टी वाला रहता है, तो सेफ्टी के लिए हम अंदर उसको जो है फ्यूज लगा सकते हैं जो लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, इसलिए हमने इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज की थी। ओके, थैंक यू सर। सर जो आप बोल रहे हैं कि आपने ये वायरलेस यूज किया था, तो मैं ये वायरलेस यानी कैसे मैं अपना मोबाइल कैसे चार्ज कर सकता हूँ? क्योंकि वायरलेस की मुझे थोड़ा ऐसा पता है कि वायरलेस में क्या होता है कि कभी कभी हमें अपने मोबाइल में भी थोड़ा पिन जैसा और पीछे सोलेनोइड जैसी एक क्या बोलते हैं एक सर्किट जैसा लगाना होता है, तो आपकी ये प्रोडक्ट में किस हिसाब से? हाँ, तो उसके लिए हम अभी यूनिवर्सल एंड्रॉइड वाला ए बी और सी वाले मोबाइल निकले हैं, तो जैसे अभी हमने उसका एक छोटा सा एक एडेप्टर लगाया था जो हम डायरेक्ट अंदर इसमें पिन लगा डायरेक्टली वो कवर के अंदर वो हाइड हो जाएगा इस तरह से, और फिर हम उससे रखेंगे वो चार्ज, तो वायरलेस को एडेप्टर लगाया था वो पावर को कन्वर्ट करके मोबाइल को चार्ज करता है। नॉर्मल इतना छोटा रहता था वो अपने मोबाइल के साथ अटैच हो जाता था। अगर इनबिल्ट रहता है तो इनबिल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जिसमें जैसे कि अभी ये फोन है तो ये वायरलेस नहीं है, तो इसको वायरलेस बनाने की हम वो एडेप्टर लगाते हैं जो डायरेक्टली अंदर इतना स्लिम रहता है कि पता भी नहीं चलता कि हमने इसके अंदर कुछ लगाया है, कवर के अंदर ही अटैच हो जाता है, और कवर के ऊपर अगर रखे तो भी वो फैशनेबल लगता है, उतना बल्क भी नहीं लगता, पूरा एक पेपर जितना पतला आता है, तो हम उसको उस तरह से मैनेज करते हैं। और जिसमें इनबिल्ट होता था उसमें तो कोई इनबिल्ट तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता था। ओके सर।
Good afternoon, Ajay. First of all, very congratulations to both of you for making technically superior products. And my question here is, आपने ये प्रोडक्ट्स बनाए और उसमें काफ़ी कुछ आपका लर्निंग भी हुआ होगा. एक फेज शायद से ऐसा भी आया होगा कि आपको ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रीज से मिली हो, फिर भी आपने अपने स्टार्टअप को ड्रॉप नहीं किया. मीन्स यू हैवंट ड्रॉप्ड योर स्टार्टअप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. डिड यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू फ्रॉम इंडस्ट्री एंड देन टू यू हैव कंटिन्यूड विद दिस स्टार्टअप? यस सर, अभी जैसे हमने ये हमारा वायरलेस पावर बैंक बनाया था, तो उस टाइम पे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की तरफ से हमको ऑफर आया था. तो हमारा वो हमारा फर्स्ट डिजाइन था वायरलेस के अंदर. और उसके बाद जो सैमसंग ने लॉन्च किया था, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी है, तो वो ऑनलाइन उसका कंपटीशन हुआ था. तो जिसके अंदर उसने, अगर हम वो कंपटीशन विन करते हैं तो उसमें 3 करोड़ का ऑफर था, उसके अंदर 3 करोड़ का ऑफर था. तो उसके अंदर लेकिन उनका ऐसा उसमें था कि अगर हम वो कंपटीशन विन करते तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो उनको ही दे देने का. हमारा उसके ऊपर पेटेंट भी उनके नाम पे हो जाएगा, पेटेंट ट्रांसफर उनके नाम पे हो जाएगा, और जो पूरा जो उसके राइट है इस प्रोडक्ट के, वो पूरे के पूरे उनके हो जाएंगे. फिर हम वो नहीं कह सकते कि हम इस प्रोडक्ट के ऑनर या हमने इस प्रोडक्ट का डिजाइन किया है. तो हमने इस प्रोडक्ट को, हमने ऐसा अगर चाहते तो उस टाइम पे हम वो 3 करोड़ लेके इस प्रोडक्ट को छोड़ सकते थे. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमको अपना स्टार्टअप करना था. अगर हमने वो ले लिया होता तो हमारा स्टार्टअप वहीं पे खत्म हो गया होता, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसके बेस पे हम इतना आगे आ पाए, तो वो प्रोडक्ट ही नहीं रहता तो हम अभी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होते. और अभी देखें तो टोटली 5 जब हमने ये डेवलप किया था तब से लेके अभी तक टोटली हमने जो 3 करोड़ ऑफर करे, तो 3 करोड़ से ऊपर हमने खुद अपना रिवेन्यू कर लिया है. जो अभी डोसी सर ने जैसे बताया कि 90-80,000 जो है वो पूरा हमारा प्रॉफिट रहता है. अगर पूरा ग्रोस के साथ में हम लोग गिने तो ग्रोस के साथ में पर मंथ का 4 लाख जैसा टोटली टर्नओवर है. जो 90,000 है वो तो हमारा प्रॉफिट निकलता है ये वाले प्रोडक्ट में से. तो मंथली इसका हम अगर 1000 पीस हमारा जो निकलता है अभी, तो 1000 पीस के अंदर से हमारा 4 लाख टोटल ग्रोस अमाउंट आता है. और उसके अंदर से हमारा प्रॉफिट, हम दोनों का प्रॉफिट 90,000 जैसा. तो टोटली अभी देखे तो हमने वो अगर एक्सेप्ट कर लिया होता, वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर ली होती, तो अभी हम जो है वो नहीं हुए होते. और ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारा रनिंग प्रोडक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं पावर बैंक की वजह से स्टार्ट हुआ. बिकॉज के उसका जब मटेरियल मिलना बंद हुआ तो 6 मंथ जैसा हमारा ऑफिस बंद रहा था, क्योंकि उसका मटेरियल कहीं पे भी अवेलेबल ही नहीं था. और इंडिया में लिथियम पॉलीमर बैटरी बनती नहीं है, तो और इस बैटरी की वजह से हम लोगों को पूरा 6 मंथ तक हमारा ऑफिस बंद ही रखना पड़ा था. कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कुछ नहीं. तब वो 6 मंथ बैठने के बाद हम लोगों को इस चीज का आइडिया आया कि हाँ, अगर हम लोग ये चीज ऐसी भी कोई चीज कर सकते हैं. तब जाके तो देखने जाए तो ये जो अभी यहाँ पे हम लोग हैं, तो इसी चीज की वजह से यहाँ पे बैठे. भले हम लोगों ने उसमें लॉस, जो 6 मंथ का लॉस हमको हुआ, वो लॉस हुआ हो, या जो हमने इसमें प्रॉफिट कमाया हो, क्योंकि वो प्रॉफिट की वजह से ही हम ये वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कर पाए. तो ये जो स्टार्ट हुआ है वो इसी चीज की वजह से हुआ है. तो अगर हमने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अभी जो हम हैं वो नहीं होते. बस हमको उतना ही लेके या तो फिर जॉब करना पड़ता, या तो फिर पता नहीं कि अभी कहाँ होते. हेलो सर. सर एज यू नो कि हमारे पास रिसाइकल में बहुत सारी चीज़ें मतलब जो आती है सर्किट्स में, तो आपने रिसाइकल की चीज़ यूज़ की है अपने प्रोडक्ट में या नहीं? और दूसरी बात की, जो आपने यू नो दैट कि जो प्रोडक्ट सबसे पहले बिल्ड होता है, तो आपने 3D प्रिंटर या कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ किया है या नहीं, कोई भी मतलब फ्रेम बनाने में या कुछ और चीज़ का? यस, हमने वो, तब हमारे पास 3D प्रिंटर नहीं था, तो हमने इसको जो यहाँ पे भरूच में भी है स्टार्टअप अपने यही कॉलेज में कहीं है, तो वो 3D प्रिंट करते हैं. तो हमने पहले उसके पास उसका मॉडल बनवाया, फिर उसका मोल्डिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसके पास उसका मोल्ड बना के फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू किया. और रही रिसाइकल प्रोडक्ट की बात, तो रिसाइकल पार्ट्स की बात, तो अभी उसमें कैसा है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, तो सर्किट के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसमें से कुछ ही चीज हम रिसाइकल कर सकते हैं. तो अगर उस तरह से हम उसको लेने जाते हैं
तो वो फिर हमको महंगा पड़ जाएगा और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्वालिटी भी घट जाती है। तो सर्किट के बेस के अंदर सर्किट जो है, तो सर्किट में हम रिसाइकल मोस्टली नहीं कर पाते। जो इसकी सर्किट हम यूज करते हैं, सर्किट के अंदर रिसाइकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी ज्यादा और जो रिसोर्सेस हैं वो ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए रिसाइकलेबल जो है इसके अंदर हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर बैटरी के जो अगर रहता है, बैटरी जैसे लिथियम आयन है, ऐसी बैटरी को हम जो वर्किंग कंडीशन में है तो वो हम रिसाइकल कर सकते हैं एक टाइम पे। लिथियम पॉलीमर को भी एक टाइम पे रिसाइकल कर सकते हैं, जो लैपटॉप की होती है बैटरी वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो सर्किट होती है, सर्किट को हम रिसाइकेबल उसमें पॉसिबल नहीं रहता, उतना पॉसिबिलिटी नहीं रहता। और 3D प्रिंटर उस टाइम पे तो हमारे पास नहीं था, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तब तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। जो हम लोगों को ग्रांट दिया था विशाल दोषी सर की वजह से, जो हम लोगों को वहाँ पे 75,000 का जो प्राइज मिला था, वही चीजें लेके हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो ये सब चीजें तब हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी है हमारे पास। तो अगर कोई चीज अभी हमको बिल्ड करनी है, कोई चीज की डिजाइन करनी है, तो वो अभी हम खुद कर लेते हैं। और अभी हमारा टोटली एसेट देखे तो एसएसटी हमारा 2 से 3 लाख का एसेट होगा पूरा। तो उसके अंदर अभी हम जो 3D प्रिंटर भी हमारा खुद का आ गया, जो हॉटस्पॉट वेल्डर होता है वो भी हमने खुद का कर लिया, और जो पूरा प्लांट टाइप एक पूरा बना दिया है हमने अपने यहाँ पे ही। तो जो मोस्टली काम जो होता है हमारे वहाँ पे ही हो जाता है, और हम जो नए नए चीजें नए नए प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो एक हमने बनाया है, ये रोबोटिक काम है, तो ये भी हमने बनाया है। ये अभी हमने इसके ऊपर हमारा काम चालू है, पूरा रोबोटिक काम है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक काम। ये अभी प्रोटोटाइप बनाया है, इसका वर्किंग मॉडल अभी इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ये पूरा निकल गया था अभी नीचे। तो इस तरह से हम एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चालू ही कर देते हैं, ताकि अगर बाय जैसे हुआ तो अगर ऐसा होता है सके, तो अभी जैसे हम ये रोबोटिक आर्म बना रहे हैं, तो रोबोटिक आर्म ऐसा है कि जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं तो उसका इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। अभी ये जो है ये इसके पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने अपने ही प्रिंटर में ये हमने खुद ही डिजाइन किए, खुद ही डिजाइन करके बनाए हैं। तो अभी जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं तो वैसा अभी वर्किंग रोबोटिक आर्म बन सकता है। तो हमारे सेकंड प्रोडक्ट रहेगा इसके बाद वाला, ये थोड़ा बड़ा रहेगा और कॉस्टली भी रहेगा थोड़ा, लेकिन इंडस्ट्रीज में हम इसको अपने यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वो जो है वो अभी हमारा वर्किंग में है पूरा। हेलो बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए बच्चों। सर यानी कि जब आप लोगों ने ये प्रोटोटाइप और वो बनाया होगा, तभी आप लोगों ने रेगुलर जो भी कंपोनेंट्स है जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज किए होंगे। तो अब आप लोग एसएमडी यूज कर रहे हैं या अभी भी वो रेगुलर वाले ही कंपोनेंट यूज कर रहे हैं सर? नहीं, एसएमडी पहले तो हमको जब उसका प्रोटोटाइप बना रहा तब तो नॉर्मली ब्रेड बोर्ड के ऊपर हम बना रहे थे। तो ब्रेड बोर्ड से जब हमने देखा उसके अंदर कौन से कंपोनेंट लगते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर और जो आईसी लगती है वो, तो उसी आईसी को हमने फिर एसएमडी में सर्च किया। तो एसएमडी में हमने तो जैसे बताया पहले, तो वो जो प्रोडक्ट की साइज थी इतनी बड़ी थी क्योंकि उसके अंदर पिन होल वाले लगे हुए थे सारे कंपोनेंट। तो हमने वही कंपोनेंट जो है वो हमने फिर एसएमडी में सर्च किया। तो एसएमडी की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है अभी इतना छोटा बन गया है। तो सारे जो पार्ट हैं वही कैपेसिटी की सेम वर्किंग उनकी हमको एसएमडी में इतने छोटे और इतने कॉस्ट इफेक्टिव मिले कि हम इस प्रोडक्ट को डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग कर सके उसका। हाँ, अभी हमारा पूरा जो टोटल है एसएमडी के ऊपर, सब कंपोनेंट एसएमडी चलते हैं इसमें। ओके सर, यानी कि आपको एग्जैक्ट पता है कि आप 9mm या कौन सी वाली टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग ऐसे देखे तो नॉर्मली अभी हम 2 लेयर तक पहुंचे हैं। तो 2 लेयर वाले में अभी उतना डीप में तो नहीं गए हैं। नॉर्मली हमारा जो सर्किट रहता है इतना ही रहता है। तो 9mm वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाता है। हमारा जो नॉर्मली अभी प्रोडक्ट है तो वो अभी देखे तो उतने लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन 2 लेयर वाली सर्किट तक हम अभी वर्क कर सकते हैं। सर आपने जो एसएमडी
आप लोग यानी अपनी पीसीबी अपने आप ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर बनवाते हैं? उसमें जो रहता है पिक एंड प्लेस मशीन, जो है पिक एंड प्लेस मशीन अभी जो पूरा डिजाइन रहता है वो डिजाइन हमारा रहता है कि इस तरह से ये कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा, लेकिन उसके लिए अगर हम बनाते हैं तो पिक एंड प्लेस मशीन चाहिए। तो पिक एंड प्लेस मशीन अभी अभी के टाइम में हम उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने ऐसा उसका रास्ता निकाला है कि जैसे अभी कोई पिक एंड प्लेस वाले हो और वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो हम उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हमको इतने 1000 पीसेस हमारा ये डिजाइन है, आप हमको इस डिजाइन का हमारा एग्जैक्ट डिजाइन है वो डिजाइन का हमको बना के दो। तो वो हमारा कैसा रहता है कि एक तरीके से हम उनको एज अ रेंटली हायर कर लेते हैं। तो हमारा वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारा पार्ट चाहिए तो उसके लिए हमको इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारा वो पार्ट बन भी जाता है। और उनके साथ में एग्रीमेंट करते हैं कि अगर हम ये आपको पार्ट दे रहे हैं तो इसका डिजाइन लीक नहीं होना चाहिए और ये किसी और के पास पहुंचना नहीं चाहिए। तो वो अगर इस कंडीशन के लिए एग्री होते हैं तो हम उनको 1-2 साल के लिए रेंट पे ले लेते हैं वो, तो वो हमको मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्टली दे देते हैं। पहले ये जो पूरा प्रोसेस होता था वो आउट ऑफ इंडिया से होता था, हांगकांग और सिंगापुर से होता था। अभी हमारा जो है वो यहीं पे इंडिया से ही हो जाता है। ओके सर, गुजरात में अपना गुजरात में कोई है क्या? क्योंकि मुझे भी मेरा स्टार्टअप में है तो मुझे भी ये सब चीज की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो गुजरात में कोई कांटेक्ट या ऐसा कुछ मिलेगा क्या? आपका कौन सा बेस पे रहेगा, मतलब कंट्रोलर बेस पे रहेगा या प्रोडक्ट कैसे रहेंगे आपके? मेरा यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यानी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन है। तो ये सब पीसीबी और वो सब है, तो वो मेरा ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का और वो सब भी मेरे डोमेन में मेन ये सब भी आएगा, इसीलिए। तो अभी जैसे कि आप अभी कहाँ पे रहते हो? सर मैं बड़ौदा में रहता हूँ और कॉलेज भरूच में। बड़ौदा में ना? हमारा बड़ौदा में अगर हो आप तो आपको अहमदाबाद नजीक पड़ेगा। अहमदाबाद में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। और जो अगर आप अगर कोई अगर सूरत ये भरूच या अंकलेश्वर में रहते हैं तो उनके लिए जो सूरत है तो सूरत बेस्ट रहेगा। और अगर आप अहमदाबाद में बड़ौदा में रहते हो तो आपको अहमदाबाद नजीक पड़ेगा। तो अभी उनको सर्च कैसे फाइंड कैसे करोगे? अभी आप मार्केट में घूमने तो नहीं जा सकते, घूम के तो नहीं सर्च कर सकते। तो उसके लिए जो है इंडिया मार्ट करके एप्लीकेशन आता है, आपने सुना है नाम उसका, इंडिया मार्ट? हाँ हाँ सर पता है। का नाम पीसीबी मैन्युफैक्चरर। तो आप उसका लोकेशन जैसे आप बड़ौदा हो तो बड़ौदा में बाई चांस अगर कोई रहता है तो वो आपको दिखा देगा, लेकिन अहमदाबाद में आपको कंफर्म मिल जाएगा। और अगर वहां पे भी नहीं रहता तो सूरत में आपको हम अभी जो रहता है हमारा सूरत, दिल्ली और मुंबई, ये 3 जगह से हमारा जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग चलता है जिनको हमने रेंट पे लिया है। लेकिन उसके अंदर आपको अगर आप अगर खुद की डिजाइन बना। हाँ हाँ बोलिए सर। जो सूरत में कौन सी जगह अभी आप पीसीबी बिल्ड कर रहे हो? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जो एसएमडी बिल्ड करते हो या यहाँ पर ही करते हो या फिर बाहर से मंगाते हो जो एसएमडी या जो पीसीबी बिल्ड होता है वो? वो पीसीबी रहता है, पीसीबी भी बनवाना पड़ता है और जो उसके कंपोनेंट रहते हैं तो कंपोनेंट का पूरा रोल आता है। तो अभी जैसे उसमें कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का पूरा रोल और रजिस्टर का पूरा रोल इस तरह से परचेस हम खुद ही कर लेते हैं। और वो जो डिजाइन रहती है तो वो डिजाइन एक के पास बनवाते हैं, उसका डिजाइन का जो पीसीबी होता है वो पीसीबी बनाने के बाद जो उसका माउंटिंग होता है, माउंटिंग वाला दूसरा रहता है, वो माउंट करके देता है। तो हमारा वो पूरा जो कॉस्ट है वो घट जाता है दोनों। अगर एक ही जगह पे हम करवाते हैं तो एक जगह पे अगर करवाते हैं तो वो जो बनाता है तो उसको ये आइडिया जाएगा कि ये कौन सी चीज है और इसका कौन सी चीज में हम यूज कर रहे हैं। तो वो करने के लिए हमने ये मोनोपोली रखा है कि अगर जैसे हम पीसीबी एक के पास बनाते हैं तो उसका माउंटिंग रहता है कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट हम खुद ही परचेज करते हैं ताकि उनको ये भी पता नहीं चले कि वो कंपोनेंट का जो रेटिंग है वो तो हम खाली परचेज करके जो हमारा डिजाइन है उसको माउंटिंग दूसरी जगह पे करवाते हैं। ओके सर, यहाँ पे सूरत में कौन सी जगह पे पीसीबी बिल्ड होती है? क्योंकि मैं सूरत में रहता हूँ तो मेरे को जानना जरूरी है सर। सूरत में अभी देखे तो क्रिप्टॉन पीसीबी करके हैं, फिर जो दूसरा है एप्लेट पीसीबी मैन्युफैक्चरर है। बहुत से हमारा अभी ये 2-3 कस्टमर ही हैं तो इनके पास से ही करवाते हैं। क्रिप्टॉन, आप क्रिप्टॉन पीसीबी डालोगे तो वहाँ पे नाम डिटेल आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर।
सर अहमदाबाद में कहाँ? हेलो सर। भाई किशन, तरल वगैरह स्टूडेंट्स, you are most invited with your questions, but see, yours are very specific questions. તો તમારે એમની હેલ્પ જોઈતી હોય તો તમારે માટે આપણે એક સ્પેશિયલ મીટ પણ અરેન્જ કરી શકીએ. You come with your questions related to the troubles you may have with your startup or anything you want to start with. So we can have some special talk with Ajay and Renuma, or otherwise other persons also, other resource persons also, so that you can get your pinpoint answers related to queries. बराबर है? श्योर सर, हाँ ठीक है. So come to us, we will definitely try to help you out as much as possible, and we will try to resolve related to your issues. Okay. ओके सर, ठीक है. हाँ बताइए किसी हेलो और को सर। कोई क्वेश्चन है? हाँ ओके. हाँ सर, जैसे आपने बिगिनिंग में बताया कि आपको फर्स्ट टाइम डोर टू डोर जाके मतलब सेलिंग करने में काफी स्ट्रगल हुआ, तो सर अभी भी आप डोर टू डोर करते हैं? आपको शॉप ऑफ हर सिटी वाइज फुल ओपन करके रखा हुआ है आपने? अभी हम डोर टू डोर इसलिए करते थे कि अभी जैसे कि हमारी नई कंपनी और नया स्टार्टअप है, तो नए स्टार्टअप के पास हम ना तो उसमें कोई रिटेलर हाथ रखेगा, ना तो कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हाथ रखेगा. इसकी वजह से हमने ये आइडिया निकाला कि पहले हम प्रोडक्ट को फैलाएंगे, और वो प्रोडक्ट जो यूजर है वो खुद अगर शॉप पे जाता है और ये यूजर के थ्रू अगर वहां पे वो पहचान होती है उस प्रोडक्ट की, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो हमने ये जो आइडिया निकाला था डोर टू डोर वाला, तो उस वजह से हमारा जो सक्सेस में है 50% सक्सेस उस वजह से हुआ, क्योंकि अभी हम जब ये प्रोडक्ट दे के आते थे उनको, तो अभी अगर कोई उनके वहां पे रिलेटिव आता था तो वो रिलेटिव भी कहता था कि हमको भी ये चाहिए. तो उसके लिए वो जो आजू बाजू इलेक्ट्रॉनिक शॉप या इलेक्ट्रिकल शॉप वाले जो होते थे उनके वहां पे ये प्रोडक्ट लेके जाते थे. तो जब वहां पे लेके जाते थे तो वो उनको वो दिखाते, दूसरे प्रोडक्ट दिखाते थे, तो वो कहते थे नहीं हमको यही वाला चाहिए. तो उसके बाद जैसे हमने उसका बीटा पायलट ये टेस्ट किया, रन किया उसका, तो हमने पहले जो 5-6 मंथ है तो हमने खुद ही पूरे में पहले हमने उसको कस्टमर तक पहुंचा दिया. तो उसके बाद जब वो खुद कस्टमर दुकानों तक पहुंचे, उसके बाद हम निकले दुकानों के ऊपर. तो जैसे अभी इनके फादर हैं तो उनको मार्केटिंग में लगा, तो जैसे ही वो शॉप पे पहुंचते थे तो वो शॉप वाले खुद ही कहते थे कि इसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत से कस्टमर के लिए आई थी. तो वो बिना कुछ आर्ग्यू किए और वो टेस्टिंग किए बिना ही वो अभी जो नॉर्मली हमारा है तो यहीं से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है हमारा. और सामने से अभी कॉल आते हैं रिटेलर्स जो है, अभी भरूच में देखे तो भरूच में अहमदाबाद इलेक्ट्रिकल, नोवेल्टी इलेक्ट्रिकल्स, और इधर साइड पे जो हमजा है, फिर कंथारिया साइड पे, हर जगह पे अभी हमारा प्रोडक्ट चलता है. तो उनके जो सामने से सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट के अंदर भी लुकमान इलेक्ट्रिकल, भारत इलेक्ट्रिकल, ऐसी सब जगह पे से हमारे ये ऑर्डर्स अभी कंटिन्यू रहते हैं. और भी जो मानसून है तो मानसून के सीजन में तो अभी सर को आज का डेट इसलिए दिया था कि अभी हमारे ऑर्डर कंटिन्यू थे और वो ऑर्डर बना रहे थे, इसीलिए. नहीं तो जो सर ने अभी हमको 1 वीक पहले का बोला था, तो उस टाइम पे जब सर ने बोला था तो हम उस टाइम ऑर्डर के अंदर इतने बिजी थे कि हमको आज जाके हम फ्री हुए. और आज अभी जो है तो अभी अपना भी मोबाइल में हमने स्विच ऑफ रखा है, क्योंकि अभी अगर चालू रहता तो आज भी कंटिन्यू रहता उनका कॉलिंग जो कंटिन्यू रहता. तो अभी जो है हमारा जो डोर टू डोर, अभी डोर टू डोर आपको इसलिए करना पड़ता है कि जब आपको कोई नया प्रोडक्ट हो और उसको फैलाना हो, क्योंकि ये चीज हमको भी पता है कि ये सही है और लोगों को यूजफुल हो सकती है, लेकिन वो कस्टमर को कब पता चलेगा? जब वो कस्टमर के पास पहुंचेगा तब जाके उसको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल है. तो अभी जो इसका रेटिंग है हमने जो इसमें अभी सेल किया है उसके अंदर से अगर कंप्लेन का परसेंटेज देखे तो 1 to 2% खाली इसका कंप्लेन है. ये वाला जो हमारा फाइनल मॉडल बना है इसके अंदर 1 to 2% खाली कंप्लेन का उसमें परसेंटेज है. तो अभी देखे तो एक तरीके से पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है. ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको डोर टू डोर भी जाना पड़ सकता है. फिर अगर आप खुद रिटेलर के वहां पे जाते हो तो अगर डायरेक्ट जाते हो तो डायरेक्ट जाने में वो रिटेलर को पहले ये होना चाहिए कि हाँ इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है. पहले सिंपल सा ऐसा है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके जाते हो तो पहले उसका नीड क्रिएट करना पड़ता है. कस्टमर को उसका नीड होता ही है. ओके मैम. हेलो, आई थिंक हेलो. नाउ यू आर ऑडिबल.
ओके ओके, तो अगर कस्टमर को ऐसा कोई प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर वो डायरेक्टली यकीन कर सके, तो पहले हमने उनको ट्रस्ट दिलाया कि हाँ ये प्रोडक्ट यूजफुल है। कितने लोगों ने तो ऐसा कहा कि नहीं आप भी दूसरी कंपनी की तरह आए हो, हमको वो बना के मतलब वारंटी गारंटी वो लोग भी देते लेकिन फिर कॉल रिसीव नहीं करते। तो अभी हमने कैसा जो डोर टू डोर लेके आए थे, तो उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए हम उसी गांव में या उसी सिटी में 2-2 3-3 बार राउंड मारते थे, ताकि उनको ये पता चले कि हाँ ये कंपनी जेन्युइन है। तो सबसे पहले अगर आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आता है कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना, क्योंकि अगर कस्टमर रहेंगे तभी वो प्रोडक्ट चलेगा और तभी वो स्टार्टअप और कंपनी चलेगी। हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके खुद ही उसको जमा करके कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो कस्टमर बिल्ड करना, और चैलेंज सबसे बात उसके उनके अंदर ट्रस्ट जमाना। तो वो जो हम डोर टू डोर घूमे थे वो ट्रस्ट के लिए घूमे थे। और जब हम लोग इसको देने जाते थे डोर टू डोर, तो वारंटी गारंटी उन लोगों को देते थे। तो अगर उन लोगों की कोई कंप्लेन आती थी तो हम खुद ही उनके पास जाते थे, नया पीस लेके रिप्लेस करके आते थे। और दूसरा उसका भी गारंटी हम दे के आते थे, जो रिप्लेस पीस होता था उसका भी हम गारंटी दे के आते थे। क्योंकि हाँ ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है कहीं पे भी बिल्ड करने के लिए। तो हम लोग खुद ही वहां पे अगर फॉल्ट भले उनसे कोई चीज टूटी थी, जनरली वारंटी गारंटी की स्टार्टिंग में हम वो माइंड नहीं करते थे कि फिजिकल डैमेज की कोई वारंटी गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग अगर वो फिजिकल डैमेज हमको करके देते थे फिर भी हम लोग वहां पे जाके उनको रिप्लेस करके देते थे। वहां से आकर उनका जब वहां पे जाते थे उनका नाम नंबर उनका एरिया सब कुछ हम लोग नोट डाउन करते थे। 15 दिन बाद फिर हम उन लोगों को जाकर 15 दिन बाद हमारे यहाँ से उनको फोन जाता था कि हमारे प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, तो आप वो हमको बताइए। वैसे कर करके हम लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड किया उन लोगों का। स्टार्टिंग में हम लोग 10 पीस जैसे लेके जाते थे, सुबह में निकलते थे और शाम तक जितने भी बिके तो उसका पूरा डेटा बना लेते थे। और अभी जैसा है तो हमारा पर डे का वीक में 4-5 दिन ऐसा होता है जिसमें 10-10 20-20 का ऑर्डर रहता है। यहीं से अभी हमको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से अभी डायरेक्ट ही सप्लाई होता है। और अभी सितंबर अक्टूबर में देखे ये जो आ रहा है उसमें, तो इसमें हमको 5000 पीस का ऑर्डर है। मतलब कम से कम हमारा 20 से 30 लाख का बैठे बैठे ही ऑर्डर आ गया है। जो हमारे इन्वेस्टर हैं तो वो इन्वेस्टर के थ्रू ही ऑर्डर आया है डायरेक्टली। तो अभी ऐसे देखे तो अभी ये प्रोडक्ट के अंदर हम बहुत सा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो पहले अगर आपका जो क्वेश्चन था कि वो डोर टू डोर मार्केटिंग वाला, तो पहले अगर आपको या तो बंदे रखने पड़ेंगे या तो आपको खुद जाना पड़ेगा। बंदे रख सके वैसे अभी अपनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी और उतना बजट भी नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले इसको फैलाना है और उसके बाद इसकी नीड क्रिएट करनी है। नीड क्रिएट करने के बाद जो रिटेलर्स हैं होलसेलर्स हैं उनके पास जाना है। तो हमने ये पूरा ये स्ट्रेटेजी अपनाया जिसकी वजह से हम अभी ये प्रोडक्ट हमारा एक तरीके से देखे तो सक्सेस हो गया है। और नीड कस्टमर को इसकी होती है, होती है, वो नीड तो क्रिएट हमने करने देखा। की जरूरत रिटेलर्स को होती है कि जब हम रिटेलर्स के पास अगर वो नीड कब क्रिएट होगी जब यूजर और जो कस्टमर है वो चीज जाकर मांगता है ना, तब उन लोगों को नीड क्रिएट होती है। वरना कस्टमर को इस चीज की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज है वो सीजनेबल है कि सिर्फ मानसून के सीजन में चलेगा। जो लारी वाले होते हैं फिर जो गैरेज चलाते हैं उन लोगों को ये सब चीजों की बहुत जरूरत है। ये चीज की जरूरत थी। जब हम लोगों ने मार्केट सर्वे किया तो हम लोगों ने देखा कि हाँ ये लोग को ये चीज की जरूरत है। लेकिन जो नाटक है वो रिटेलर के थ्रू हुए। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले रिटेलर्स के पास लेकर नहीं गए, लेकर गए, लेकिन उन लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा था कि कोई नहीं लेगा, नई कंपनी है, ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम खुद ही जाकर देखते हैं कि कौन ट्रस्ट नहीं करता है, और ट्रस्ट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। तो जब हम लोगों को ये पता चला कि ट्रस्ट कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर उस चीज का सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढा कि अगर हम ये चीज करते हैं तो उन लोगों को ट्रस्ट हम पे करना ही पड़ेगा। और जब उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ फिर उन लोगों ने रिटेलर्स के पास जाकर इस चीज को मांगा, और जब मांगा तब जाके सामने से हम उनको कार्ड देके आए थे तो सामने से हमारे पास उनकी कॉल आ रही है। जिन रिटेलर ने हम उनके पास पहले गए थे और उन्होंने हमको रिजेक्ट कर दिया था, आज उनके खुद सामने से कॉल आते हैं और अभी हमारे वो कंटिन्यू कस्टमर बन गए।
थैंक यू सर। वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, चलिए जल्दी से 5 मिनट, एक दो और क्वेश्चन है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन। My name is Ayush Pandey. गुड आफ्टरनून रहनुमा मैम एंड अजय सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारे टीचर्स ने भी बताया और आप लोगों ने भी कहा कि हमें अपने ब्रांच जो है उसके अलावा, हमारी जो डोमेन है उससे अलावा भी हमें और भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है एक SSIP या स्टार्टअप खड़ा करने के लिए। तो वो एक बैलेंस कैसे रहे हमारे एकेडमिक्स और ये SSIP जो स्टार्टअप है उसके बीच में एक बैलेंस कैसे बना के रख सकते हैं कि हमारे मार्क्स पे भी कुछ अफेक्ट ना हो। आई मीन अगर हम इफ इन फ्यूचर हमारा स्टार्टअप ना चले तो ऐसा भी ना हो कि हमारे जो मार्क्स है उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े किसी वजह से। अभी जैसे देखें तो अभी अगर आप मन से किसी कोई चीज करने को सोचो तो वो चीज हो ही जाती है। तो हमने किस तरह से मैनेज किया, जैसे कि नॉर्मली हमको भी एग्जाम देनी रहती थी, वाइवा देने रहते थे, हर चीज हमको भी करना पड़ता था, असाइनमेंट भी लिखना रहता था। तो हम उसके अंदर कैसा करते थे, जैसे अभी सब इवेंट होते हैं जो कॉलेजेस के अंदर, अपना कौन से इवेंट होते थे वो, वैलेंटाइन डे, सिग्नेचर डे, वैसे टाइम पे जो हमने ये लैब के अंदर जाके काम किया, तो जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे तो उस टाइम पे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर भी वहां पे भी स्टडी हो ही नहीं रही है, नॉर्मली एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने वहां पे एंजॉय को अभी एक टाइम पे साइड पे रखा और अपने रिसर्च के ऊपर ध्यान दे रहे। तो जैसे ये कोई छुट्टी होती थी या तो ऐसा कुछ होता था, तो उस टाइम पे जैसे नॉर्मल लोग अभी एंजॉय करने में वो टाइम यूटिलाइज कर देते, तो हम उसको अपने रिसर्च के अंदर यूटिलाइज करते थे। हम ही उस जब हमारे कॉलेज के अंदर वो चल रहा था, सिग्नेचर डे चल रहा था, तो हम फिजिक्स लैब में बैठे बैठे देख भी रहे थे कि अभी वो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे बैठे ये कर रहे हैं। एक टाइम पे वैसा भी होता था, लेकिन अभी वो जो है, अभी जिनको हम देख रहे थे वो खुद हमारे पास जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो अभी जब उस टाइम पे जो हो रहा था, थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा था कि हाँ हम लोग यहाँ पे बैठ के बोरिंग की तरह काम करते, और हम भी एंजॉय चाहते तो हम भी एंजॉय कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ कि हमने अपना जो फ्री टाइम जिसके अंदर हमारा स्टडी नहीं था, तो वैसे टाइम को निकाल के हमने उसको सही वे में यूटिलाइज किया, क्योंकि अभी एंजॉय किया तो एंजॉय एक टाइम पे एक दिन 2 दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा महीने रहेगा, लेकिन अभी हमने जो किया है उससे हम ये 4 साल तक यहाँ पे टिक सके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी को बिगाड़ के ही करो, आप फ्री टाइम में भी कर सकते हो, जो आपको अब डिसाइड आपको करना है, आप लेना है कि हम किस तरह अगर आप चलो इस चीज यूटिलाइज करते भी हो, आप अपने सारे जो फंक्शंस हैं वो आपने अटेंड नहीं किए, ये तो अगर वो भी करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइमिंग कम पड़ता है तो रात किसकी है? रात हमारे लिए ही है ना। हम जब फिजिक्स लैब में हम जब रहते थे तो जो स्वीपर होते हैं तो वो स्वीपर आके खड़े रहते थे हमारा बंद करने का वेट करने के लिए, तुम कब बंद करो, तो कितनी बार 4:30 5 तक भी बच जाते थे, मैम चले जाते तो 5 भी बच जाते थे, फिर भी हम वहाँ पे काम करते रहते थे, क्योंकि वो एक लिंक रहती है, तो लिंक वो कंटिन्यू रखना जरूरी रहता है। अगर लिंक टूटती है तो हम फिर से वहां से कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी उसका हमने एक रास्ता निकाला कि जैसे अभी फिर हमने घर से स्टार्ट कर दिया, तो घर पे जो वहां पे से लिंक टूट जाती थी, तो घर से हमने जो पार्ट टाइम कॉलेज से आके फिर हमने उसको घर पे स्टार्ट किया। तो घर पे हम पूरा स्टडी करने के बाद और सब करने के बाद हम अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लग जाते थे, ताकि हमारा स्टडी भी कंटिन्यू रहे और हमारा प्रोजेक्ट भी एक साइड और हम दोनों एक साथ में तो नहीं रहते, लेकिन जो फोन है, अभी फोन का आप चाहो तो चाहे कैसे भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग जो भी हम लोगों ने किया उस फोन पे हम लोगों ने काम वीडियो कॉल के ऊपर हमने प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है, किस तरह से उसका टेस्टिंग करना है। तो मैं अंकलेश्वर में रहता हूँ, ये भरूच में रहते हैं, तो अभी इतना डिस्टेंस अभी अप डाउन करने में रात को तो पॉसिबल नहीं है, तो रात को हम 1-1 2-2 बजे तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे और खाना वाना खाने के बाद तुरंत ही उसको लग जाते थे। कितनी बार हमको 4 भी बज जाते थे, सुबह में 4 बज जाते थे, तो 4 बजे तक काम करने के बाद हमको 8 बजे फिर कॉलेज जाना पड़ता था। तो इस तरह से अभी इनका जो है ये पास हुए तो उसमें डिस्टिंक्शन के साथ में पास हुए, तो ऐसे देखे तो उस चीज का हमारे स्टडी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर एक टाइम पे हमारा स्टार्टअप नहीं भी रहता तो अगर जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हैं, इजीली मिल सकती है। डिस्टिंक्शन के साथ आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है
तो जॉब अगर स्टार्टअप इन केस बंद करना पड़ता है तो जॉब भी इजीली मिल जाएगी। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो हम लोगों का पैटर्न कंप्लीट हुआ तो लोग कॉलेज में सब सिग्नेचर डे मना रहे थे और हम जो है वो हमारे पैटर्न के डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर रहे थे। हम दोनों मिलकर हम लोगों ने सिग्नेचर डे वहां पे मनाया था। और वैलेंटाइन डे के दिन सब लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। तो हमारा अहमदाबाद में जीआईसी है, जीआईसी में से उस दिन हम अवार्ड रिसीव करके आए थे 14 फरवरी को 29 तो अवार्ड हमको मिला था। वेल इन टाइम है ना, वेल इन टाइम, यू आर वेल इन टाइम, नॉट वैलेंटाइन बट वेल इन टाइम। तो ऐसे तो हम लोग हर जगह पे साथ ही रहे, लेकिन वो जो साथ रहने का वो था कि लोग तब वैलेंटाइंस डे मना रहे थे, हम लोग अवार्ड ले रहे थे। अलग था। सिग्नेचर डे पे हम लोग पैटर्न के डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके उसको सबमिट करवाने जा रहे थे। वो पूरी जर्नी हमारी अलग रही है। तो अगर करना चाहे तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें स्टडी हमारी वेस्ट हो या तो स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़े। ऐसे देखे तो हमारी स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। वो भी कंटिन्यू रहा और ये भी हमने एक साइड पे कंटिन्यू कर लिया। और पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब उन लोगों ने पैसा उसमें डाला इंजीनियरिंग में, डिस्टिंक्शन के साथ वो डिग्री लगी है घर पे और ये भी चल रहा है, तो कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुआ। वो मैनेजमेंट करना अपने हाथ में होता है कि हम कौन सी जगह को कौन सी चीज को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने अपना टाइम अपने स्टार्टअप के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया। इस वजह से और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एंजॉयमेंट नहीं किया, जो चीज हम कर रहे थे वही चीज हमारा हमने एंजॉयमेंट किया। जो चीज हम बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर ही हमने अपना एंजॉयमेंट ढूंढ लिया और उसके अंदर ही कंटिन्यू रखा। Excuse me, feedback link is put in the chat. मैं हर पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीडबैक अपना दे, जिससे कि हम ऐसे प्रोग्राम्स को और बेहतर बना सकें। So a feedback link is already put in the chat. Please try to fill the feedback before leaving this program. So I request all the participants to fill the feedback. So I sum up the program. Hello. Thank you. अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अपना जोशी साहब दिव्येश बात करूँ। हाँ बोलो, लास्ट क्वेश्चन। हेलो, दिव्येश सर है सर। हाँ सर, दिव्येश। हाँ सर, दिव्येश सर। दिव्येश परमार, Ajay and Renuma, I am giving you congratulations for this, and I would like to appreciate your startup success. And definitely this startup story today shared over here will boost the power and energy, both the things in the students, and they will start their own startup, right? I hope you remembered me. I don't know whether you know or not, knowing or not. But I have witnessed your attendance in classroom in SUMIT, and you were very sincere during that time. So that's why I'm here to say the students that they were very sincere, and though they are doing so anyone can do this. And I also like to say thank you to Doshi sir and respected Doshi sir and SSIP team to bring these people on this platform to encourage our students. Thank you, sir. My question is to... Yes, sir. Okay. Any question? Anybody have a question? Now we will sum up. देखो, ये दोनों ने बताया कि कैसे कितनी दिक्कतें आती है। एक बार तो 6 महीने में वो लोग बैठे रहे, है ना, फिर भी सस्टेन रहे, पूरा अपना टाइम का कैसे यूज किया। देखो, टाइम 24 आवर्स ही होता है ना। अब आप वो फिर प्रेसिडेंट हो या प्यून हो, दोनों के पास 24 आवर्स ही होते हैं। आप कैसे यूज करो वो आप पे ही है ना। आप सिग्नेचर डे भी मना सकते हैं और सिग्नेचर भी कर सकते हैं, पैटर्न पे कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मौज है ना। तो टाइम का सही यूज करो, अपनी एनर्जी का सही यूज करो, एक अपना लक्ष्य बनाओ, अपना पर्पस बनाओ, है ना। पर्पस बनाते हैं तो एक ही दिशा में आप काम कर सकते हैं। ये दोनों ने यही किया कि बहुत अर्ली स्टेज में अपना पर्पस बना दिया। और देखो कितनी बड़ी बड़ी ऑफर आने के बाद भी ये लोग अपने रास्ते पे डटे रहे। मैंने यही कहा, स्वयं में विश्वास, अपने रास्ते पे विश्वास और अपने पर्पस पे विश्वास। तो ये दोनों ने तीनों चीज की, तो आज वो यहाँ पे है, आपके सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मुझे अमिताभ बच्चन की एक कविता याद आती है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसकी आखिरी कड़ी है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यूं ही कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों यहाँ पे आए और आप दोनों ने ही ये स्टार्टअप, ये जो सेल था, हमने भी ये पूरे सेल में सब लोगों ने आपसे बहुत इंस्पायरेशन ली। बहुत ही सीधे साधे शांत दिखने वाले ये लोग, हाँ, ये दोनों मन में कितना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे थे और वो लक्ष्य पे डटे रहे, है ना। और लक्ष्य पार करने के लिए कोई बहुत बड़े नेटवर्क की, बहुत बड़ी एसेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत बड़े इरादे की जरूरत होती है। वो दोनों के पास था, तो वो दोनों ने अपने आसमान की तरफ उड़ान की। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और यहाँ पे मैं अशेष सर और SI सर का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे इतने प्रोग्राम होते हैं लेकिन दोनों डटे रहते हैं और जो सामने कभी नहीं आते, लेकिन हर बार वो लोग की मेहनत होती है, ये सब बनाना, पोस्टर बनाना, लिंक बनाना, फीडबैक, इतना वर्क रहता है ना। तो ये दोनों करते हैं, हर वक्त करते हैं, कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं। तो थैंक यू वो दोनों का भी, सभी पार्टिसिपेंट का फिर से, ये दोनों रहनुमा और अजय, आप दोनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका, और आप दिन रात चौगुनी, है ना, 4 गुनी 10 गुनी प्रगति करे, ऐसी ऊपर वाले से अभ्यर्थना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, तो ये प्रोग्राम आप फीडबैक भर दो तो उसे समाप्त घोषित करते हैं। अगर और आपकी डिमांड रहेंगी और तो दोनों से हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने टाइम में से थोड़ा टाइम बच्चों के लिए भी निकाले, है ना, और बच्चों को भी इंस्पायर करें। तो थैंक यू रेनुमा। चलिए, थैंक यू अजय, थैंक यू। Thank you, Doshi sir. If you are unable to see the feedback link, we have started sharing to you personally also. So before leaving, please fill the feedback. Thank you all. चलिए, आप जा सकते हैं, आप भी, आप लीव करना है तो लीव कर सकते हैं, मैं भी लीव कर रहा हूँ। सर मैं लीव कर दूँ ना? हाँ, yes sir. चलो भाई, रेनुमा, अजय, Aditya and Renuma and you both can also leave. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Bye. Okay, I have shared the link to all. If anyone didn't get, please let me know so I can send.